Hey guys, welcome to the Harrison based series. So today we'll discuss ILD in detail. The definition of ILD. Diffuse parenchymal lung disease include a large number greater than 200 of heterogeneous conditions that affect the lung parenchyma with varying degree of inflammation and fibrosis. We have already discussed this table in great detail in our previous video. Now let us continue. So, ILD is further classified into two types on the basis of their etiology, either unknown etiology or known etiology. If the etiology is unknown, then ILD is further divided into IPF and LAM, idiopathic pulmonary fibrosis, which is also called UIP. It is most common variant of ILD and it occurs in 50 to 60 years of age group, more common in male, and the prevalence is 50 to 200 to 10,000. The HRCT and biopsy finding we have already discussed in our previous video with mnemonic. We have discussed that HRCT and biopsy finding includes subpleural reticular pattern with tractional bronchiectasis with honeycombing. Treatment include antifibrotic agent like pirfenidone and nintedanib and lung transplantation. Now, LAM, lymphangiomatosis. It is important to note that LAM has its association with tuberous sclerosis. It is one of the common findings seen in tuberous sclerosis patient. LAM is more common in females. Now, let us discuss the known causes of ILD. The known causes might include CTD, chronic connective tissue disorders. The most common ILD associated with CTD is NSIP, which occurs mainly in 50 years age group and more common in female. As we all know that connective tissue disorder is more common in 50s and connective tissue disorders are more common in female. Hence, the ILD associated with CTD is more common in female. We have already discussed in our previous video the HRCT and biopsy finding of our NSIP. That is, we had discussed there that the HRCT finding of NSIP is peripheral ground glass opacities with within subpleural area. Okay. Now, treatment of all CTD associated ILD includes immunosuppressants with oral steroidal agents like prednisone and cytotoxic agents like MMF, azathioprine and cyclophosphamide. Among CTD associated ILD, we have systemic sclerosis. It is important to note that ILD is more common in generalized systemic sclerosis than in localized systemic sclerosis. In systemic sclerosis, we have already discussed the CREST syndrome, that is calcinosis cutis, Raynaud's phenomenon, esophageal dysmotility, as sclerodactyly and T. telangiectasia. Rheumatoid arthritis. It is important to note that वैसे तो rheumatoid arthritis फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन जो ILD एसोसिएटेड विद rheumatoid arthritis होती है वो मोर कॉमन इन मेल होती है. एक और बात जो rheumatoid arthritis के बारे में इंपॉर्टेंट है कि rheumatoid arthritis वैसे तो एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है. हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़ में मोस्ट कॉमन ILD जो होती है वो NSIP होती है, लेकिन rheumatoid arthritis एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसमें मोस्ट कॉमन ILD NSIP नहीं होकर UIP है. ठीक है. फिर आता है डेर्मेटोमाइसाइटिस एंड पॉलीमाइसाइटिस. इसमें जो एंटीसिंथेस एंटीबॉडी और एंटीजो एंटीबॉडी होती है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ILD होती है. इन सब में हमें नॉन स्पेसिफिक HRCT और बायोप्सी फाइंडिंग मिलेगी. फिर आते हैं स्मोकिंग एसोसिएटेड. स्मोकिंग एसोसिएटेड ILDs में अपने आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकिलाइटिस एंड DIP. जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर जो स्मोकिंग वाला एज ग्रुप होता है 40 to 50 ईयर्स होता है, इसलिए ये दोनों 40 to 50 ईयर्स में मिलेंगी. अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो DIP है, डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, वो मोर कॉमन इन चिल्ड्रन मिलेगा और उसका फैमिली एसोसिएशन होता है. ठीक है. ये दोनों ही अब अपन को पता है स्मोकिंग ज़्यादातर कौन करता है, मेल करता है, इसलिए मोर कॉमन इन मेल होंगे. इनमें अपन को सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स मिलेंगे एंड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ मिलेंगी.
जब हम बायोप्सी लेंगे तो उसमें हमें पिगमेंटेड मैक्रोफेजेस मिलेंगे, क्योंकि जो स्मोक का जो तार है वो डिपॉजिट हो जाएगा एल्वियोलाई में जाके, तो पिगमेंटेड मैक्रोफेजेस बनाएगा और एल्वियोलर डस्ट बनाएगा। ट्रीटमेंट में हम स्मोकिंग को क्विट करने के लिए बोलेंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देंगे। फिर हमारी नेक्स्ट टाइप की जो ILD है, जो नोन कॉजेज़ हमने देखे थे, नोन कॉजेज़ में हमने CTD एसोसिएटेड देखा था और स्मोकिंग एसोसिएटेड देखा था। अब थर्ड वेरिएंट आता है ग्रैनुलोमेटस एसोसिएटेड। अगर ग्रैनुलोमा प्रेजेंट है तो हम देखेंगे वेस्कुलाइटिस कंपोनेंट है या नहीं है। अगर वेस्कुलाइटिस कंपोनेंट नहीं है तो मोस्ट कॉमन ILD एसोसिएटेड विद ग्रैनुलोमेटस कंडीशन जो होती है सार्कोइडोसिस में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। अब हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक डस्ट की वजह से हुआ है या इनऑर्गेनिक की वजह से। अगर ऑर्गेनिक की वजह से होता है तो हमारे उसका एग्जांपल है बर्ड फैंसियर लंग, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में अपना एग्जांपल है कोल्ड वर्कर निमोकोनियासिस। अब हम देखेंगे एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस अगर है तो हमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग मिलती है हीमोप्टाइसिस भी मिलता है कफ के साथ में। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मेनली कौन से वेस्कुलाइटिस एसोसिएट हो सकते हैं ILD के साथ, तो इसमें आते हैं वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस और इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा। अब वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस जो होता है ये दोनों ही स्मॉल मीडियम वेसल को इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस में हमारे सब कुछ ही इन्वॉल्व हो जाता है, ईयर, नोज, थ्रॉट, किडनी, सब कुछ। इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस में अपने ट्रायड मिलता है साइनोसाइटिस, अस्थमा और इओसिनोफिलिया का, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ILD को डिवाइड किया है एक्यूट में, सब एक्यूट में और क्रॉनिक में, ठीक है। एक्यूट में हमारे आते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया, या फिर जैसे हम हमान रिच सिंड्रोम भी बोलते हैं, या फिर एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑफ ILD। ये लेस देन 30 डेज़ में अगर एग्जासर्बेशन हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाए विद अंडरलाइन लंग पैथोलॉजी, तो अपन एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑफ ILD बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में अपने HRCT में ARDS जैसी फाइंडिंग मिलेगी और हिस्टोपैथ में भी ARDS जैसी फाइंडिंग मिलेगी। डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज मिलेगा। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेते हैं पेशेंट को, ठीक है। सब एक्यूट हम बोलते हैं वीक्स टू मंथ्स के बाद में। मोस्ट कॉमन ILD का जो प्रेजेंटेशन होता है वो सब एक्यूट होता है। फिर आते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक मंथ्स टू ईयर्स होता है। इसमें अपना आता है IPL, ठीक है। अब एक बार नट शेल में हम ILD को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ILD को हमने डिवाइड किया है ड्यूरेशन के हिसाब से, हमने डिवाइड किया था एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक में। हमने देखा था क्रॉनिक का मोस्ट कॉमन एग्जांपल IPF था। एक्यूट में हमने हमान रिच सिंड्रोम और एक्यूट एग्जासर्बेशन देखा था। सब एक्यूट में मोस्ट कॉमन सभी तरह की ILD आ जाती है। एटियोलॉजी में हमने के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अननोन और नोन कॉज। नोन में हमने देखा था CTD एसोसिएटेड, स्मोकिंग एसोसिएटेड और ग्रैनुलोमेटस एसोसिएटेड, ठीक है। फिर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था मोस्ट कॉमन सिम्टम जो ILD में मिलते हैं वो होता है ड्राई कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। अब अगर कफ के साथ में हीमोप्टाइसिस एसोसिएटेड है तो उसका मतलब वेस्कुलाइटिस प्लस ILD है, ठीक है, जो अपने मिल सकता है गुड पास्चर सिंड्रोम में, वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस में और LAM में। अगर चेस्ट पेन के साथ ILD एसोसिएटेड है तो ज़्यादातर लाइकली चांस है कि सार्कोइडोसिस होगा। उसके अलावा पास्ट हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का पता करने के लिए। मेडिकेशंस की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि ILD करवाती है, जैसे कि एजाथाइप्रिन, रितुक्सीमैब, मिथोट्रिक्सिन, एमिडोरॉन और ब्लियोमाइसिन। फैमिलियल जीन्स इंपॉर्टेंट है जैसे कि TERT और MUC5B जो होते हैं ये अपने ILD करवाते हैं। एज की बात करें ग्रेटर देन 60 ईयर्स में अपने UIP मिलती हैं, 50 ईयर्स में NSIP और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स वाले मिलते हैं, 40 ईयर्स में अपने स्मोकिंग रिलेटेड मिलते हैं, अपन ने डिस्कस कर लिया है। जेंडर में हमने देखा था फीमेल में कौन कौन सी ILD सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो लामा, LAM और CTD। थैंक यू। आई होप नाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू सो मच।